We wait for another 5 minutes. Let us come. Order आ जाए. In the meantime, just tell your name and you are in from which college and what you are doing now. Let's start from the ladies. Dr. Pampi Pandya, and who is second year medicine resident in SVP Hospital. Okay. Dr. Bhagishri, I'm a second year resident in LG Hospital. Dr. Sudarshan, second year resident, LG Hospital. Same class. So it's all batchmates. How many seats are there for MD in your college? 35. Oh, great. Huh. Third year medicine resident. DNP second year medicine resident. Oh, great. So please introduce yourself. Acha, okay, sorry. My apologies. चलिए ठीक है sir. Well, it will be a lot of learning point for all of you. मैंने कुछ दिन 2-3-4 महीने पहले भी यहाँ पे एक क्विज किया था. कोई था आप में से कोई था किसी ने अटेंड किया था? नहीं. एपिकॉन में भी मैंने पिछले 6 एपिकॉन में मैं ही कर रहा हूँ. तो उनको पता है कि डॉक्टर भाटिया विल टीच होल मेडिसिन. और 4 घंटे मिलते हैं. दे गिव मी लास्ट डे लास्ट शो. उसके बाद कोई सेशन नहीं होता है. देन आई एम फ्री टू टॉक. आज भी वही है. बट टुडे आई हैव टू वाइंड अप बाय 4:15 बिकॉज एक सेशन और भी है. मतलब ऊपर है. या so tell your name to your friends. Where are you working? Sub introduce yourself. ओके. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. आपका नाम किस ईयर में बताएंगे? ओके. आप सबके लिए एमआरसीपी इज ए वेरी गुड ऑप्शन. वेरी गुड ऑप्शन. यू कैरी ऑन व्हाट यू आर डूइंग. साथ साथ ही एमआरसीपी कर लो. एमआरसीपी इज ए वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड डिग्री. एमडी मेडिसिन हर जगह रिकग्नाइज नहीं है. और वहां जाके यू कैन डू सुपर स्पेशलिटी ऑल्सो. when you go, your salary is in the range of 70 to 80 lakhs per annum. और वहां पे 48 आवर काम करना है. 49th आवर काम करके पैसे डबल मिलते हैं. हिंदुस्तानी आदमी शनिवार इतवार काम करके 1 करोड़ रुपए साल का कमा लेता है. ओके. और वहाँ का लेवल ही अलग है. वहां पर कोई कंपटीशन नहीं है. हमारे यहाँ तो कंपटीशन है ना. अब एमडी में घुसे, यू हैव ए कंपटीशन. अगेन डीएम के लिए कंपटीशन है. So all of you start preparing simultaneously, and that will really enhance your your MD skill also and NEET SS also. ये सलाह है आप लोगों के लिए. In the meantime, you can note down my number. ये मेरा नंबर है. You can note down, click it. तो we 5 more minute. अभी बजे हैं 2:03. So we start at 2:07 sharp. Many people are taking lunch. Please come. ओके. तो वहां नहीं जाना है मुझे. I'll stay here only.
now the medicine quiz is new topics, and our undergraduate, graduate and postgraduate students of medicines will take the part. And Dr. Mukesh Bhatia is a graduate of Maulana Azad Medical College, New Delhi, chairman and managing director of prestigious Dr. Bhatia Medical Institute. Faculty of Medicine has taught whole internal medicine to more than 3 lakhs doctors in the last 25 years. The author of best-selling books, a textbook named Medicines Simply Simplified. It is a popular known as Mini Harrison's Medicine. We also practice in private practice, uses his book, and now new edition is coming. So everybody is uh, also see the textbook and you can order. Bhatia Sahib are running so many classes teaching the NEET students for PG, foreign medical graduate entrance examination, and well-known name in teaching. So I give to start the session. Thank you, sir. Thank you very much for the kind words of appreciation. Just to begin with, just to inform you, API is starting quiz, test and discussion classes for all of you per month. ये पहला सेशन करेंगे 21 अप्रैल से, डन बाय API. इट विल बी हाइब्रिड मोड, दिल्ली में करेंगे, वहाँ लाइव होगी फेस टू फेस, बट इसको हम ऑनलाइन भी करेंगे. सो दैट मीन्स यू ऑल कैन ज्वाइन. डिटेल आई शेयर एंड नो फीस, इट्स ऑल टोटली फ्री. यही चाहिए आपको टेस्ट एंड डिस्कशन फॉर्मेट में, जैसे आज कर रहा हूँ इसी फॉर्मेट में होगा. ओके तो इसका प्रोग्राम शेड्यूल विल आई लेट यू नो. ओके so I think it's a good news for all of you that you are getting free of cost tests and discussion. Well, it is an open quiz. All PGs can participate, everyone can participate. It's only for PG resident, not for the consultants. There will be questions for the audience also. It will be learning with entertainment. पढ़ाई should be मजा आना चाहिए. It should not be boring thing. और मेरी क्लास में लोग 8 घंटे बैठते हैं, फ्रेश आते हैं, फ्रेश ही जाते हैं. Dr. Krishna is here. She was my student in UG days, did her MD, and now she is preparing for NEET SS. Give a big hand to her. खड़े हो जाए यार. जब इसने अपना PG पास किया, इसका मैसेज आया, सर आपकी किताब पढ़ के I could do my post graduation. Give a big hand once again. Thank you very much. All many questions have been taken from NEET SS exam, जिसके लिए आप आए हो. I will discuss all the questions. It's just like a test and discussion, right? Well, आप सबसे मेरी पहली मुलाकात हो रही है और मेरा फंडा है स्टडी शुड बी फन. तो पहली मुलाकात है तो इस बात पे एक शेर अर्ज है. इरशाद बोलते हैं, इरशाद बोलते हैं, बाबा बाद में बोलते हैं. कुछ नशा धीमी बरसात का है, कुछ नशा तेरी बात का है. कुछ नशा धीमी बरसात का है, कुछ नशा तेरी बात का है. तुम यूं ही हमें शराबी न समझो, तुम यूं ही हमें शराबी न समझो. ये असर मेरे दिल पर, ये असर मेरे दिल पर तेरी पहली मुलाकात का है. वाह 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 वाह. चलिए जी, with this study should be a fun. Most specific eye signs seen in grave disease कौन सा है? कोई बोलेगा नहीं? ओके, पढ़ लिया सवाल. How many of you say A, B, C? Everybody has to raise the hand. D, E. Well, जिसको इसका आंसर नहीं आता है, उसको थायराइड नहीं आता है. ओके, सो डोंट वरी. आंसर है कीमोसिस. अब ये आंसर क्यों है, ये क्यों नहीं है, इसके लिए हम कुछ बेसिक कंसेप्ट. वेल, थायरोटॉक्सिकोसिस,
also known as hyperthyroid, also known as grave disease? Yes, no? No. ये सब अलग है, ये एक नहीं है. Let's learn the basic concept. When we say thyrotoxicosis, that means excess of thyroid hormone is there in the body. Excess thyroid. And this thyroid hormone can come from thyroid gland, then we call as hyperthyroid. It is coming from here. But if it is coming from outside thyroid, then we call as euthyroid. There is no problem in the gland itself, कहीं और से आ रहा है. So let's talk about, पहले इसके बारे में बात करेंगे. अब जब ये एक्स्ट्रा थायराइड है तो देन वी कॉल एट द टर्म यूथायराइड. यहाँ पे गोइटर नहीं होगा और रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक इज रिड्यूस. ओके, एग्जाम्पल आज ट्यूमा ओवराई. गायनी वाले पढ़ाते हैं कि ओवरी के अंदर देयर कैन बी एक्टोपिक टिश्यू एंड दैट कैन सेक्रीट हार्मोन. फैक्टिशियस थायरोटॉक्सिकोसिस क्लासिकली सीन इन नर्सेस या फार्मासिस्ट. जब भी आपको सवाल आए एक फार्मासिस्ट और नर्स को कोई थायराइड प्रॉब्लम है, यू थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम. ये क्या है? नर्स है, लड़की है 22 साल की, उसकी शादी होने वाली है. शी इज ओबीस लेडी, शी वांट टू रिड्यूस द वेट वेरी फास्ट. ड्यूरिंग नर्सेस ट्रेनिंग दे आर टॉट सम बेसिक मेडिसिन. उसको ये बताया गया कि थायराइड हार्मोन खाने से वेट कम होता है. अब रोज आएगी ड्यूटी पे, एक गोली खा लेगी, टक टक टक, एक गोली खाएगी, अब तो मैं ऐश्वर्या रॉय बनने वाली हूँ. She may not become Aishwarya Rai, but definitely she'll become thyrotoxicosis. तो यहाँ पे factitious thyrotoxicosis the word. तो जब नर्स या फार्मेसिस्ट वर्ड आए तो यू आर डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम. डिक्वेरियन थायरोटॉक्सिकोसिस, ये वायरल इन्फेक्शन होता है ग्लैंड का. तो पहले इसमें क्लासिकल वर्ड इज फीवर एंड टेंडर थायराइड ग्लैंड. फीवर टेंडर थायराइड ग्लैंड आए तो यू आर डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम. ओके, जब थायराइड का वायरल इन्फेक्शन होगा तो पहले प्री फॉर्म्ड हार्मोन निकलेगा, तो हार्मोन बढ़ेगा तो पेशेंट बिकम थायरोटॉक्सिकोसिस. बट लेटर ऑन ऑल हार्मोन गॉन डाउन तो पेशेंट बिकम हाइपोथायराइड. फाइनली इट कम टू नॉर्मल बिकॉज इट्स ए सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन. तो ये है एक्स्ट्रा थायराइड वाले कॉजेस. नाउ वी टॉक अबाउट थायराइड व्हिच वी कॉल एज हाइपरथायराइड. क्लासिकली गोइटर होगा, यहाँ पे गोइटर नहीं है, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक बढ़ जाएगा because the basic pathophysiology is in the thyroid gland itself. इसमें तीन है. ग्रेव डिजीज, इट्स ए ऑटोइम्यून डिजीज, ट्रायड ऑफ हाइपरथायराइड, ऑप्थेल्मोपैथी एंड डर्मोपैथी. इसमें जो गोइटर होता है वो यूनिफॉर्मली इनलार्ज ग्लैंड होती है. टॉक्सिक एडोमा में कोई आई साइन, कोई स्किन साइन नहीं होगा एंड देयर विल बी सिंगल नोड्यूल. और मल्टी नोडल गोइटर में मल्टीपल नोड्यूल होंगे लेकिन स्किन साइन और आई साइन नहीं होंगे. स्किन साइन, आई साइन सीन ओनली इन ग्रेव डिजीज. गॉट इट? So grave disease is a type of hyperthyroid, but all hyperthyroid are not grave disease. Hyperthyroid is a type of thyrotoxicosis, but all thyrotoxicosis are not grave disease. With this background, we move further. Now, ये तो कहानी का एक हिस्सा रहा. Now, thyroid hormone, we all know in hyperthyroid tachycardia is there, atrial fibrillation is there. Why this happen? Again, we learn the basic physiology. Thyroid hormone increases sensitivity of beta receptor to epinephrine. मान लीजिए ये मायोकार्डियम है और यहाँ पर एक रिसेप्टर है बीटा रिसेप्टर, और यहाँ पे आके एपिनेफ्रिन ने काम करना है. अब ये जो थायराइड हार्मोन होगा इस रिसेप्टर को सेंसिटिविटी बढ़ा देगा. व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीज सेंसिटिविटी? अब मैं माइक में बोल रहा हूं, माइक का काम है मेरी आवाज को एम्पलीफाई करना, ऑल्दो मैं अपनी नॉर्मल टोन में बात कर रहा हूं. सपोज बहुत बड़ा हॉल है और पीपल कैन लिसन टू मी एट द बैक. सपोज आई स्विच ऑफ माई मोबाइल और स्विच ऑफ माई माइक, तो मुझे पीछे आवाज जानी, कैसे बोलूंगा? कैन यू हियर मी? ओके, ओकेगा यस, लेकिन मुझे अपनी आवाज तेज करनी पड़ी. तो ये फर्क है. तो ग्रेव का इसमें थायराइड का हाइपरथायराइड के अंदर या थायरोटॉक्सिकोसिस में बीटा रिसेप्टर की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है. ओके, दैट मींस सेम अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन विल कॉज टैकिकार्डिया एंड एट्रियल फिब्रिलेशन.
जबकि फियोक्रोमोसाइटोमा में अमाउंट ऑफ हार्मोन बढ़ जाता है, ये फर्क है, उसमें भी टेकिकार्डिया होता है. So if you want to differentiate between the two, you have to check the thyroid hormone level. Okay, right, sir? So that is why iske thyroid has many features same as of pheochromocytoma. लेकिन एक मेजर फर्क है, इसके अंदर पैनिक अटैक होता है, इसमें नहीं होता है. Who knows the answer? Why पैनिक अटैक अगर यहाँ पे क्यों नहीं होता है? आंसर ये है कि यहाँ पर जो हार्मोन रिलीज होता है वो सडन होता है, एपिसोडिक रिलीज ऑफ हार्मोन होता है. अच्छा भला बंदा बैठा हुआ है, अचानक ही हार्मोन रिलीज हो, अचानक तो पैल्पिटेशन होगा, घबराहट होगी, सो कॉल्ड पैनिक अटैक. जबकि थायरोटॉक्सिकोसिस में इट इज यूनिफॉर्मली इंक्रीज हार्मोन लेवल होता है. तो पैनिक अटैक इज ए फीचर हेयर, नॉट हेयर. वेल, अब थोड़ी सी और एनाटॉमी पढ़ते हैं. ये रहा अपर आईलिड, यहाँ पे एक मसल है लिवेटर पैल्पेबल सुपीरियरिस, और यहाँ पे एक मुलर मसल है, ये वाली. ये एक सिंपैथ, इट इज ए सो कॉल इट इज सिंपल मसल, स्ट्राइटेड मसल, लेकिन इसकी ये एक यूनिक मसल है. इसकी जो सप्लाई होती है सिंपैथेटिक होती है. गॉट इट? सिंपल सप्लाई होती है. और अभी भी मैंने कहा था कि इसके अंदर एपिनेफ्रिन की एक्टिविटी ज्यादा होती है. सो दैट इज व्हाई ये जो आई साइंस हैं, ये सारे दे आर ऑल ड्यू टू इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ मुलर मसल. तो दे आर सीन इन ऑल केस ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस. ये बात आपको नहीं पता होती है. तो लिड लैग, लिड रिट्रैक्शन, ओके, ये डिक्रीज ब्लिंकिंग, ये सारी चीजें आपको हर एक में मिलेंगी. वाइट शेयरिंग केस, you will be getting in all thyrotoxicosis. You are going to ask me, you mean to say this will be seen in Duquirins also? Yes, everywhere. और जो आई साइन की हम बात करते हैं, दे आर साइन कीमोसिस, पप्टोसिस, डिप्लोपिया, पेपिडीमा, ये स्पेसिफिक आई साइंस हैं विच आर सीन इन ग्रेव डिसीज. समझा की बात? सो ये रहा पप्टोसिस एंड ये कीमोसिस, द रेड आई, बल्जिंग ऑफ आई. आपको एग्जाम में वो डेमोन्स्ट्रेट करेगा, डेमोन्स्ट्रेट करो. यू हैव टू सी फ्रॉम द बैक, पीछे से देखेंगे एंड यू कैन सी ये आई इज इन द, ये बिल्कुल फोरहेड के लेवल पे होती है नॉर्मल, ये अंदर बल्ज होती है. गॉट इट? सो यू आर क्लियर अबाउट क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. Yeah. How many of you say A, allopurinol, aspirin, Dabigatran, erythropoietin, vitamin C? Well, it's a beautiful question. ये MRCP में भी आया हुआ है, नीट एसएस में भी आया, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का. आंसर है एस्पिरिन. अब ये आंसर क्यों है? लेट्स लर्न द बेसिक कंसेप्ट. एक बात आज सीख लो, अगर आपको, इफ यू रियली वांट टू एक्सेल इन एनी एग्जाम इन द वर्ल्ड, आपके बेसिक बहुत स्ट्रांग होने चाहिए. लेट्स लर्न द बेसिक कंसेप्ट. बेसिक कंसेप्ट ये है कि व्हेन वी ट्रीट ए केस ऑफ पर्नीशियस एनीमिया विद B12 फॉलिक एसिड, ठीक है, सेल को आरबीसी बढ़ते हैं, दैट हमें पता है, बट 99% स्टूडेंट आर नॉट अवेयर there occur increased platelet count also. Platelet count, if you read Harrison 21st edition, उसमें लाइन लिखी है, the platelet count can go as high as 6 to 8 lakhs per ml. That means severe thrombocytosis can occur, which can predispose to thrombus formation. So when we are treating a case of B12 this thing with folic acid, तो आपको हीमोग्लोबिन तो देखना ही देखना है, आरबीसी देखनी है, वो नॉर्मल है, बढ़ेगा, बट यू हैव टू कीप ए वॉच ऑन प्लेटलेट काउंट ऑल्सो. प्लेटलेट काउंट इज गोइंग वेरी वेरी हाई,
it can predispose to clot formation in any part of the body. So you have to give low dose aspirin. Regarding hypokalemia, I'll talk. चलिए इसके बारे में बात करते हैं. हाइपोकैलीमिया, ब्यूटीफुल लाइन. एक और चीज जो होती है हाइपोकैलीमिया होता है B12 फॉलिक एसिड थेरेपी में. इफ यू रीड 18, 19, 20, 21 एडिशन हैरिसन, इन सब में एक हाइपोकैलीमिया के कॉजेज के अंदर टेबल बनी हुई है. नाम लिखा है B12 फॉलिक एसिड, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं दिया. बट यू रीड 14, 15, 16 एडिशन पढ़ेंगे तो उसमें वही के वही टेबल है और एक्सप्लेनेशन में एक लाइन दिखी है कि व्हेन वी ट्रीट ए केस ऑफ pernicious anemia with B12 folic acid, it lead to hypokalemia. That's all, और कुछ नहीं दिया. But if you read 10th, 11th, 12th, 13th edition, वही के वही टेबल है, वही के वही हाइपोकैलीमिया है, उसमें एक लाइन और लिखी है. When we treat a case of pernicious anemia with B12 folic acid, it lead to hypokalemia. The reason given is large number of cells are getting made and potassium being an intracellular ion will enter and lead to hypokalemia. फिर फुल स्टॉप. फिर आगे लिखता है बट व्हाई इट डजंट हैपन व्हेन वी ट्रीट अदर डेफिशिएंसी लाइक आयरन डेफिशिएंसी, रीजन नॉट नोन. ये लाइन 12, 13 में लिखा हुआ है. एनीवे दे आर टू ब्यूटीफुल क्वेश्चन. ये रैंक 1 क्वेश्चन है जिसके लिए आप आए हो मेरे पास. ओके, ये MRCP में आया हुआ है और नीट एसएस में भी आया हुआ है. ठीक है, तो एस्प्रिन देंगे टू प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन. कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद हाइपोकैलीमिया. एक बात बता दूं, नॉर्मली मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड हाइपरकैलीमिया आर टुगेदर. हाइपोकैलीमिया एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस आर टुगेदर, बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शन. ये कौन सा है? अगेन रैंक 1 क्वेश्चन. एनीवन कैन थिंक. पहली बात तो ये है, चलो, राइट आंसर इज सिवियर डायरिया is loss of bicarbonate that lead to metabolic acidosis. RTA type 1 and RTA type 2. We all know very well. I made a statement that whenever we have hyperkalemia, metabolic acidosis, hyperkalemia are together. Why? Again, we go to basic. We all know when the metabolic acidosis is there, lungs are playing a role and they have a small breathing. CO2 goes out and they try to maintain the pH to normal range. But most of you are not aware even RBC play a role. तो जब एसिडोसिस होगा तो हमें मान लो ये पूरा RBC है और हमें पता है कि पोटेशियम इज इंटरसेलुलर आयन. तो H ion will enter the cell to control acidosis. But a positive particle has entered the cell. A positive potassium has to go out. So it means whenever there will be metabolic acidosis, hyperkalemia होगा. इसे इकट्ठे चलते हैं और हाइपो और मेटाबॉलिक एल्कोसिस में उल्टा होता है. बट इन मेडिकल साइंस देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट. So there are 3 conditions where we have metabolic acidosis with hypokalemia: diarrhea, RTA type 1 and RTA type 2. Okay, all clear? Yeah, it's a beautiful question. Calculate the plasma osmolality. और ये नॉन कीटोटिक हाइपरस्मोलर कॉमा है. एंड आई वांट टू गिव ए हाइपोटोनिक फ्लूइड. कौन से वाला मैं दूंगा? टेक योर टाइम. फेयर एनफ, जस्ट सी. पहले या कितनी प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी है इसके अंदर? चलिए कौन सा फ्लूइड देंगे ये करो. हु सेज A, B, C, D, E? Well, so let's go to basic. How to calculate plasma osmolality? Sodium plus potassium multiplied by 2.
RBS milligram percent divided by 18 to convert into millimole per liter. BUN milligram percent divided by 2.8. तो हमारे हिसाब से अब फिर देखें, अब यहां पर है हमारा 900 डिवाइड बाई 18 तो कितना हो जाएगा 50. 2.8 को 28 को 2.8 से क्या होगा 10 हो जाएगा. 135 और 5 135 5 कितना हो गया 140. 140 मल्टीप्लाई बाई 2 280. 280 प्लस कितना हो जाएगा 50 एंड और कितना है 10. तो दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच, इट कम्स आउट विथ 340. ये कैलकुलेशन है. नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोलिटी 28 का 280 टू 300, किसी बुक में 275 टू 295 भी लिखा है, बट 280 टू 300. सो अब यहां पर ऑस्मोलिटी 340 है, मुझे इसकी ऑस्मोलिटी को नॉर्मल लेके आना है. नॉर्मल सलाइन इज ए आइसोटोनिक टू नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोलिटी. यहां पे इट बिकम हाइपोटोनिक. तो यू रीड द क्वेश्चन वंस अगेन. व्हाट ही सेज, कौन सा हाइपोटोनिक फ्लूइड देंगे, नॉर्मल सलाइन. कि नॉर्मल सलाइन इज आइसोटोनिक टू नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोलिटी बट बिकम हाइपोटोनिक टू दिस प्रॉब्लम. तो पहले हमेशा हम इसको देंगे नॉर्मल सलाइन. जब इसकी ऑस्मोलिटी 320 के आसपास आएगी देन वी कैन स्विच ओवर टू n/2 सलाइन. और 300 के आसपास जाएगी, पेशेंट कॉन्शियस है तो वी कैन गिव इवन ओरल फ्लूइड आल्सो. समझ आ गई बात. तो यू गॉट ब्यूटीफुल क्वेश्चन. नॉर्मल सलाइन इज द आंसर. Third sound, why it is not heard in cardiac tamponade, in which valvular heart disease third sound is not heard. Well, again, basic physiology. Basic physiology ये माइटल स्टेनोसिस में नहीं होता और सीटी में क्यों नहीं होता है. लेट्स लर्न द बेसिक ऑफ कार्डिक साइकिल. अर्ली डायस्टोल जब होता है, जब डायस्टोल शुरू होता है तो डेफिनेटली माइटल एंड ट्राइकुस्पिड वाल्व खुलते हैं. तो शुरू में 70% ब्लड कम फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल. तो शुरू के पार्ट को कहते हैं रैपिड फिलिंग फेज ऑफ मायोकार्डियम. रैपिड फिलिंग फेज, और उसमें राइट साइड के अंदर यू गेट वाइड डिसेंट इन जेवीपी. लेफ्ट साइड में नॉर्मल कोई साउंड होती नहीं है, होनी होगी तो थर्ड साउंड होती है. तो थर्ड साउंड को भी कॉल एज फिलिंग साउंड. सो नाउ इट्स वेरी क्लियर दैट वाइड डिसेंट कॉरेस्पॉन्ड टू थर्ड हर्ट साउंड because they are all occurring in the rapid filling phase of myocardium. Near the late phase of diastole, 30% the blood will come to ventricle, and this is due to atrial contraction. That's why we call as atrial kick. और JVP में A wave आती है, everybody knows. और यहाँ पे लेफ्ट साइड में नॉर्मल कोई साउंड आती नहीं है, आनी होती है तो S4 आती है. तो S4 इज एट्रियल साउंड कहते हैं, बिकॉज प्रोड्यूस बाय एट्रिया. तो S4 कॉरेस्पॉन्ड टू A वेव, और AF के अंदर दोनों ही नहीं होंगे. अब अगेन गो बैक. रैपिड फिलिंग फेज के अंदर थर्ड साउंड आ रही है और वाइड डिसेंट आ रहा है. अब कार्डिक टेम्पोनेड है, द होल मायोकार्डियम इज सराउंडेड बाय द वाटर. तो रैपिड फिलिंग फेज कभी होती ही नहीं है. तो रैपिड फिलिंग फेज नहीं होगी तो थर्ड साउंड नहीं आएगी. सिमिलरली माइटल स्टेनोसिस के अंदर का इस टोटल ब्लॉक्ड एरिया है, ब्लड विल नेवर कम रैपिडली. तो यहाँ पे रैपिड फिलिंग फेज नहीं होती है. तो ये दो क्लासिकल कंडीशन है जहाँ पे थर्ड साउंड कभी नहीं होती है. जबकि कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस में परमानेंट थर्ड साउंड होती है, व्हाट यू कॉल एज पेरिकार्डियल नॉक कहते हैं उसको. अंडरस्टूड कि वाई इसमें क्यों नहीं होती है. Sodium chloride challenge test is done in which condition? It is done in Conn syndrome. Let's talk about Conn syndrome, so-called primary hyperaldosteronism भी कहते हैं इसको. Classically diastolic hypertension होता है ये वाला. ये बड़ा important. जब ये लाइन आ जाए तो 99% you are dealing with Conn syndrome.
नो एडीमा, क्लासिकल क्वेश्चन, डिस्पाइट एक्स्ट्रा सोडियम रिटेंशन। दो कंडीशन ऐसी है जहां पे एडीमा फीट नहीं होता है, एक SIADH में, एक कॉन सिंड्रोम में। प्रोफाउंड हाइपोकैलीमिया बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ sodium getting reabsorbed, and to compensate body will lose potassium and HIN, hypokalemia and metabolic alkalosis होता है। muscle weakness again due to hypokalemia, polyuria. Now raise the hand, why polyuria occurs in Conn syndrome? इसके बेसिक फिजियोलॉजी क्या है? The answer is profound hypokalemia होता है। Profound hypokalemia में it develop nephrogenic diabetes insipidus. The tubule become resistant to action of ADH, so patient keep on passing large amount of urine. And same thing happen in primary hyperparathyroid के अंदर भी। Two condition where nephrogenic diabetes insipidus occur, hypokalemia and hypercalcemia. And drug, important drug is lithium. Okay, ये तीन नाम नहीं बोलने हैं। How we diagnose primary hyper? पहले PAC, plasma aldosterone concentration, plasma renin activity. This is the best initial screening test है ये वाला। PAC, plasma aldosterone and plasma renin concentration. Confirmatory test के लिए you do sodium chloride challenge test. You call the patient in the morning, empty stomach, and you take his serum aldosterone level. एंड उसके बाद सलाइन देंगे, मे बी ओरल और मे बी बाई IV। अगर नॉर्मल पर्सन होगा तो उसका एल्डोस्टेरोन लेवल कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एल्डोस्टेरोन लेवल विल मेंटेन। So that's why sodium chloride challenge test is done for Conn syndrome. But this is much more commonly asked in the exam. True about tertiary hyperparathyroid. How many of you say answer is A, B, C, D, E? Well, the right answer is E. Well, we all know primary, secondary and tertiary. प्राइमरी में एडिनोमा होता है और सिंगल एडिनोमा यूजली इंफीरियर वाला होता है। उसमें प्राइमरी वाले में कैल्शियम हाई, फॉस्फेट लो, ये प्राइमरी एडिनोमा है। सेकेंडरी, एनी कंडीशन वेयर देयर इज प्रोफाउंड हाइपोकैल्सीमिया, जैसे BSE, ये जो है इनमें प्रोफाउंड हाइपोकैल्सीमिया है, तो इनके अंदर सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइड होगा। सेकेंडरी के दो इंपॉर्टेंट कॉज हैं, पहला है CRF, दूसरा न्यूट्रिशनल रिकेट ऑस्टोमलेशिया। CRF में लो कैल्शियम हाई फॉस्फेट और न्यूट्रिशन वाले में लो कैल्शियम लो फॉस्फेट। दैट मीन प्राइमरी सेकेंडरी को डिफरेंशिएट करेंगे कैल्शियम से, सेकेंडरी वाले को दो को डिफरेंशिएट करेंगे बाय फॉस्फेट लेवल से। इनफैक्ट वन ऑफ द मेन कल्प्रिट iron in CRF is high phosphate level. The high phosphate level will lead to metastatic calcification and all the pangas. That's why for in CRF cases, controlling phosphate level is very essential. अब ये टर्शरी वाले के अंदर, स्पेशली CRF वाले के अंदर, after many years it become autonomous. All the four glands start secreting large amount of कैल्शियम एंड फॉस्फेट, अनकंट्रोल होता है ये वाला। गॉट इट? तो मेन चीज है ये, वो चीज है जाकि दोनों बड़े हुए हैं, खास ध्यान देंगे। और ALP लेवल हर एक में बढ़ता है बिकॉज देयर इज इंक्रीज ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी होती है, बॉडी ट्राई टू मेक मोर एंड मोर सेल्स। तो दोस्तों टर्शरी वाले के अंदर occurs after prolonged secondary hyperparathyroid, especially CRF वाले के अंदर। It causes gland to act autonomous, having undergone hyperplastic or adenomatous changes in all the four parathyroid gland. ये एक अंडरलाइन वाली बात है, चारों ग्लैंड इन्वॉल्व होती हैं।
This causes unlimited PTH secretion, no feedback control by calcium, increased calcium, PTH, phosphate सब बढ़े हुए होते हैं. So this is unique thing, और that means चारों gland होंगी और usual treatment is surgery only. Yeah. This is seen in which rheumatological condition? It's a bit easy question. Try. Nervine. PN है. Sorry, PAN. Polyarteritis nodosa. इसमें typical PAN के अंदर you get libido reticularis, portal reticular vesicular pattern that appears like a lace, purplish rash होती है. अब ये libido reticularis कौन सी एंटी पार्किंसन ड्रग में भी होता है? Amantadine. Very good. Good. Very good. Amantadine. Gangrene. Polyarteritis nodosa. Gangrene. This is leg ulcers. और इसमें एन्यूरिज्म बनते हैं. ये रही नॉर्मल और इसके अंदर सारे एन्यूरिज्म बन गए, माइक्रो एन्यूरिज्म बने हुए हैं, और ये चीज आपको नजर आई थी. और इसे रोजरी अपीयरेंस भी कहते हैं. ये बीड्स बनी होती हैं, बट टिपिकली ब्यूटीफुल एंजियोग्राम. ओके, इसे क्लिप आपके एमडी का स्पॉट क्वेश्चन भी है ये वाला. व्हाट इज ग्रेड 4 टेंडरनेस एंड नेम एनी कॉज ऑफ ग्रेड 4 टेंडरनेस? How do you do the grading of tenderness? Well, we all know very well tenderness is a sign. It has to be elicited by. आया पेशेंट आपके पास, उसका हाथ में दर्द है, आपने हाथ लगा, दर्द है, हाँ डॉक्टर साहब दर्द है, तो दिस इज ग्रेड 1 टेंडरनेस. ग्रेड 2 में आपने हाथ लगाया, आह, पेशेंट आह करेगा, चिल्लाए, तो ग्रेड 2 टेंडरनेस है. ग्रेड 3 में ओ डॉक्टर साहब, he will withdraw. आपने टच किया, he will withdraw. Grade 3 tenderness. Grade 4 में don't touch. He won't let you touch. This is grade 4 tenderness. तो grade 1 दर्द है, grade 2 में withdraws and won't let you touch. ये आपको आना चाहिए, प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है. Now what are the causes of grade 4 tenderness? Grade 4 tenderness के causes हैं. पहला है septic arthritis. Second is gout, और तीसरा arthritis occurring in rheumatic fever. Okay, classical है ये questions. So now this is gout, podagra, just see rod head, tender, grade 2 joint होता है, और podagra होता है, just see. This is so called martel और G sign, red bite sign, जैसे चूहे ने कुतर लिया है, overhanging edges होते हैं ये वाले. Question 10. Infection by which bacteria can cause endocarditis in carcinoma colon? What is the pathology of Roth spot? This you should know. Question only for residents, not for the senior consultants. ये बात पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं. You have come here, it's a great honor for me. हाँ जी, only for resident question. Well, पहला है Streptococcus bovis endocarditis is associated with silent colonic carcinoma. हैरिसन में एक लाइन लिखी है कि अगर आपको ये बैक्टीरिया मिल जाता है कल्चर के अंदर, it is mandatory for you to do the endoscopy to rule out, colonoscopy to rule out CA colon. Always perform colonoscopy if Strep bovis diagnosis in endocarditis. Roth spot, boat shape retinal hemorrhage with pale center. ये वाला pale center है, boat shape hemorrhage का लिखते हैं वो लोग. So it's a type of retinal hemorrhage. Well, open question. Commonest cause of epidemic of hepatitis in India. बड़ा ही आसान सवाल है. So only for resident doctors, of course. How many of you say option A आंसर है? हाथ तो खड़े करो यार. ऑप्शन बी आंसर है, ऑप्शन सी आंसर है, ऑप्शन डी आंसर है, ऑप्शन ई आंसर है. आंसर है इसका ऑप्शन
E. Commonest cause of epidemic in India is E. But commonest cause of epidemic in children in India is A. फर्क है दोनों में. समझ आ गई? ऑफ कोर्स दोनों ओरोफिकल रूट से होते हैं, बट ए एंड ई अलग अलग है. ओके. Vertical gaze is affected in which syndrome? In which syndrome lateral gaze is involved? Okay, or well, the right answer is पहला है Parnot syndrome, मिड ब्रेन के अंदर होता है, और लॉक्ड इन सिंड्रोम पॉन्स, लेटरल गेज सेंटर पॉन्स में होता है और अपवर्ड गेज सेंटर मिड ब्रेन में होता है. नाउ Parnot syndrome के बारे में, paralysis of upward gaze, downward gaze is usually preserved, eyelid retraction, so called Collier's sign is there, and pupillary hyporeflexia. Now, ventral pontine infarct locked in syndrome, complete quadriplegia, consciousness is preserved, lateral eye movement are not there, preserve upward eye movement. That means बंदा ऐसा होता है, खाली वो upward यू मूवमेंट कर सकता है, बाकी कोई मूवमेंट नहीं होती है, और पेशेंट फुल्ली कॉन्शियस होता है. Which vitamin deficiency can lead to lactic acidosis? Well, the right answer is vitamin B1. अब ये आंसर क्यों है? This again you will never understand unless you know the basic biochemistry. So let's read basic biochemistry. ये पूरा metabolic pathway है. जाहिर है I am not going to teach you whole metabolic pathway. तो अभी I just confined to what I need for my question, वो इस स्लाइड में है. Well, हमें पता है कि ग्लूकोज शुरू होता है ग्लाइकोलाइटिक पाथवे और नीचे आता है. ओके, तो मैं अब यहाँ पे आ रहा हूँ, ये वाला. तो ये ग्लाइकोलाइटिक पाथवे होते होते ये यहाँ पर आए, क्या बना? पायरुवेट. पायरुवेट से बनता है स्टाइल कोएंजाइम, सबको पता है. बट यहां पर भी नीड B1, पहली बात. नाउ एस्टाइल कोएंजाइम पायरुवेट कैन आल्सो गो टू लैक्टेट पाथवे, भी इसका होता है. दैट मीन एस्टाइल कोएंजाइम के पास दो रास्ते हैं. अब ये रास्ता बंद हो जाएगा, B1 डेफिशिएंसी होगी, तो पायरुवेट विल स्टार्ट मेकिंग लैक्टेट. गॉट इट? तो दैट्स व्हाई B1 डेफिशिएंसी कैन लीड टू लैक्टिक एसिडोसिस. The clinical applied क्या है? Hypoglycemia patient come to you, you give injection glucose देते हैं, but what you are supposed to do first is give B1. ये इसका basic physiology है. One night can lead to one case encephalopathy हो सकती है. थोड़ी सी और बायोकेमिस्ट्री करा दूं आपको, थोड़ी सी और. अब ये एस्टाइल कोएंजाइम A बना नॉर्मली. अब इससे क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम A, it will make HMG-CoA. HMG-CoA बनाएगा, क्या बना रहा है? कोलेस्ट्रॉल. HMG-CoA नाम कुछ जाना पहचाना सा है. इफ आई गिव स्टैटिन, वो क्या करेगा? HMG कोएंजाइम A सिंथेसिस इनहिबिटर, वो क्या काम हो जाएगा? कोलेस्ट्रॉल. ये बेसिक फार्माकोलॉजी. फिर HMG को A get converted to acetoacetate and beta hydroxybutyrate, which is ketones. That means extra amount of acetyl coenzyme will convert it into ketone. That's the basic reason why ketosis occur in DKA. Okay, ये इसका reason है इसका, right? हो? And hydroxybutyrate के बारे में खास बात है, ketone है, but this one ketone which is not detected by Rothra's test. Rothra test में detect नहीं होता है. जबकि एस्टोएसिटेट आ जाएगा, तो अनलेस का. तो नाउ क्वेश्चन, सपोज ए पेशेंट ऑफ DKA कम टू यू, व्हाट द बेस्ट प्रोग्नोस्टिक पैरामीटर? आंसर है पीएच. क्योंकि आइडियली बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट देखिए ये टेस्ट नहीं कर पाते रूटीन लैब के अंदर, तो दैट वी कैन मॉनिटर ओनली बाय ब्लड पीएच. तो ब्लड पीएच इज द सिंगल बेस्ट पैरामीटर टू नो अबाउट prognosis of a case of diabetes ketoacidosis. Done.
Well, this type of tongue is in which condition? Yeah. इसे 1, 2, 3 is a triple furrowed tongue. माइस्थेनिया ग्रेविस में होती है ट्रिपल फरोड टंग. इस पेशेंट में इसे एस्टाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज वाले पेशेंट में होती है वाली. नॉन थाइमोमेटस बल्बर प्रीडोमिनेंट माइस्थेनिया ग्रेविस. The following the following resolve treatment including thymectomy, prednisolone or mycophenolate. When we treat this disappear. Now एक चीज जो आपको आनी चाहिए, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ treating any immune disease I'm talking about, not myasthenia gravis. क्या बेसिक प्रिंसिपल है? This you should know. Well, and we also use immunosuppressive therapy. क्या इसका बेसिक प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल रिमेन द सेम. लाइक मेरे पास माइस्थेनिया का पेशेंट आया और उसकी हालत खराब है, उसको आईसीयू में उसको ट्रीट किया मैंने. उसको मैं I'll give का ड्रग लाइक न्यूस्टिकमीन, पाइरोस्टिकमीन दूंगा सिम्प्टोमेटिक इंप्रूवमेंट के लिए. देखिए इम्यून के लिए I'll give स्टेरॉइड इमीडिएटली. एट द सेम टाइम मैं इसको ये वाली ड्रग भी शुरू करूंगा. I'll start माइक्रोफेनोलेट भी शुरू करूंगा, साथ साथ ही इकट्ठे शुरू करूंगा. ओके. तो इस ट्रीटमेंट के 3 कंपोनेंट, एक है पाइरोस्टिकमीन, न्यूस्टिकमीन टू डू द सिम्प्टोमेटिक इंप्रूवमेंट. सेकेंड वाला स्टेरॉइड विच इज टेकिंग केयर ऑफ इम्यून. फिर आप पूछोगे देन व्हाई यू आर गिविंग माइक्रोफेनोलेट. यस, स्टेरॉइड का एक्शन स्टार्ट वेरी फास्ट. ओके, वेरी फास्ट. बट वी कैन नॉट गिव स्टेरॉइड फॉर लॉन्ग टाइम. तो उसको 2-3 महीने देख के उसको टेपर ऑफ कर देते हैं. तब तक जो बाकी दवाइयां माइक्रोफेनोलेट वगैरह उनका एक्शन आना शुरू हो जाता है. तो उसको का स्टेरॉइड को विड्रॉ करके यू कंटिन्यू विद माइक्रोफेनोलेट. ये बेसिक प्रिंसिपल लगभग हर जगह यही अप्लाई होता है. जब आपका वाइवा में सवाल पूछेगा तो आपको ये जवाब देना है, then why can't you continue steroid for long time? Long term steroid can lots of side effects that everybody knows. So that's why we never use steroid for long time. Upper gyroscopy, what is seen in this condition? It is eosinophilic esophagitis. Corrugated appearance. क्लासिकल कॉरुगेटेड अपीयरेंस जो होती है, डब्बे आते हैं कॉरुगेटेड वाले. दिस इज सीन इओसिनोफिलिक इसोफेजाइटिस. उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा चीजें, ये रहा कैंडिडा वाला, हर्पीस सिम्प्लेक्स, पंच डाउड अल्सर और लीनियर अल्सर. लीनियर अल्सर इज सीन इन सीएमवी इसोफेजाइटिस. तो लीनियर अल्सर है, ये पंच डाउन अल्सर है. यहाँ पे मल्टीपल व्हाइट पैचेस होते हैं और कॉरुगेटेड अपीयरेंस वाज इओसिनोफिलिक. Name 2 important condition where there is thrombocytopenia but there is increased clot formation. Normally we are all well aware thrombocytopenia lead to bleeding tendency. पर यहाँ पे paradoxical है, यहाँ पे increased clot formation. Right. Little louder. DIC. Okay, और कुछ? The right answer is PNH. Heparin-induced thrombocytopenia and APLA. इसमें PNH के बारे में खास, जब क्वेश्चन आए या पेशेंट आए, फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन सैंपल ब्लैक एंड द होल डे यूरिन क्लियर, ये लाइन मिल जाए तो आप PNH से डील कर रहे हैं. It's a complement mediated intravascular hemolytic anemia at night. ये complement activate होता है और night में activate होता है. Why? वो complement is activated in the acidic media. When we sleep at night, we all tend to retain CO2. That lead to mild respiratory acidosis. उसमें complement activate होगा
and that will break down उसमें का that will break up, there is deficiency of CD55 59 की कमी होती है. So that's why it break down all the three cell lineage, RBC, platelet, and WBC also. So there is pancytopenia होता है. मजे की बात है कि यहाँ पर प्लेटलेट काउंट कम हो गई है, बट स्टिल ड्यू टू अल्टर्ड मेम्ब्रेन का सरफेस के एंड कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट अटैच होता है, they tend to adhere to each other and they tend to make clot formation. PNH is a unique thing. इसमें acute myeloid leukemia भी हो सकता है और pancytopenia भी हो सकता है, aplasticemia भी हो सकता है. There can be bleeding also and there can be clot formation also. तो इसकी बड़ी अजीब सी प्रेजेंटेशन है. What is the drug of choice for acute bleeding hemolysis in PNH? Eculizumab? Yes, no. Eculizumab is the most common wrong answer. Steroid is the treatment of choice for acute bleeding. Eculizumab is a preventive drug. It's not for acute attack. Okay. So for prevention देंगे आप, right? एक सवाल और. एक जगह पोस्ट ग्रेजुएट वाला was presenting a case on PNH. तो उसने कहा जी फॉर प्रिवेंशन वी गिव एक्यूलिजुमैब. मैं कही दिस ड्रग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड. नहीं सर यही देते हैं. मैं कहा जी इससे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड. नहीं सर इट इज गिवन इन हैरिसन ऑल्सो. मैं कहा यस. उन दोनों हैरिसन का 20th एडिशन था. मैं कहा यस it is given in Harrison 20th edition, page number 821, right side column, last paragraph की first line में लिखा है. अब वो सारे हैरान, ये सब लिखा है तो then why you say why contraindicated? मैं कहा do you know the cost of the drug? कहता नहीं. इसका जो कॉस्ट आता है लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए पर एनम का खर्चा है. तो मैंने उस लड़के से पूछा हैव यू सीन एनी पेशेंट हु कैन अफोर्ड दिस 5 करोड़ रुपीस पर एनम? कहता नहीं. कहता विल यू प्रिस्क्राइब? कहता नहीं. तो कॉन्ट्राइंडिकेट हो गई नहीं हो गई? कॉन्ट्राइंडिकेट हो गई. इट्स सो एक्सपेंसिव ड्रग एंड दिस ड्रग वी आल्सो यूज फॉर एटिपिकल एचयूएस में भी करते हैं. फिर उससे सवाल मैंने पूछा कोई देसी इलाज बता. देसी इलाज? कहता है मैं कुछ नहीं. बेसिक प्रॉब्लम क्या है? एसिडिक पीएच एट नाइट. रात को 11 बजे सोता है, उसको 1 बजे उठा के उसको तो लंबे लंबे प्राणायाम कर ले. प्राणायाम क्या है? आपने लंबी ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया, CO2 बाहर निकाल दिया, पीएच हैज कम टू नॉर्म. ओके, तो 2-3 बार उठा दो, ठीक हो जाएगा. बेसिक आने बहुत जरूरी है. फिर किसी ने कहा जी उसको रात को 2 बार उठना पड़ेगा. मैं कही 10 का अगर आपको 5 करोड़ बचाने हैं वो 4 बार भी उठेगा, वो 4 बार भी उठेगा. एनीवे, तो दोस्तों ये बेसिक कंसेप्ट है. In which layer of skin vitamin D is synthesized? Yeah. The answer is, चलो थोड़ा बेसिक बायोकेमिस्ट्री अगेन. प्लांट्स के अंदर भी विटामिन डी होता है, बट वो D2 फॉर्म में इसको एर्गोकैल्सिफेरॉल करते हैं, बट नॉट वेरी सिग्निफिकेंट. D3 कोलिकैल्सिफेरॉल होता है, कंज्यूम इन मिल्क, फॉर्म इन द सन एक्सपोज स्किन, स्टेटम बेसल के अंदर. अब ये जो 25 D3 स्टोरेज फॉर्म जो लिवर में होता है और 125 ये बनता है एक्टिव फॉर्म जो कि किडनी में बनता है. तो 25 का 125 किडनी में, अब किडनी काम नहीं करेगी, CRF में ये नहीं बनेगा. दैट्स व्हाई विटामिन डी लेवल इज रिड्यूस एंड दैट लीड टू रिड्यूस कैल्शियम लेवल इन CRF. तो ये रहा स्किन की हिस्टोलॉजी और ये रहा स्टेटम बेसल रहा ये वाला. ओके, और उसके नीचे डर्मिस के जस्ट दैट मीन यहाँ पर स्टेटम बेसल एंड यहाँ पे विटामिन डी सिंथेसिस होता है. आपको बता दूं कि जितने हम लोग बैठे हैं हमारा 95% का विटामिन डी लेवल कम है. चेक करा लो, D3 लेवल का चेक कराओ. और all from affluent family because we don't have sun exposure. B12 लेवल कम होता है, D3 लेवल कम होता है. चेक करा के बताना, you will find and उसको you take care of these things, your health will really improve a lot. हाँ जी, तो बात चल रही थी बेसिक बायोकेमिस्ट्री.
सनलाइट में 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो स्किन में होता है, और ये क्या बनेगा, D3, लिवर में 25, किडनी में 125, इसे 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन होता है, अल्टीमेटली गो टू रिसेप्टर एंड दैट्स ऑल द बेसिक. Which organ is involved in malignant rheumatoid arthritis? Louder. Lungs. No. Right answer is skin. हालांकि आरए के अंदर भी आई इन्वॉल्व होती है. देयर कैन बी स्क्लेरोमलेशिया, स्क्लेराइटिस, एपिस्क्लेराइटिस, स्क्लेरोमलेशिया भी हो सकता है. लेकिन वी कॉल एज मैलिग्नेंट स्किन अल्सर होती है, मैसिव अल्सर बनता है, वी कॉल एज मैलिग्नेंट रूमेटॉइड आर्थराइटिस. Usually people talk about eye involvement is malignant hypertension में होता है, पेपिडीमा यहाँ नहीं होता है. Well, अब जो नई ड्रग्स के बारे में, that you all must be familiar, infliximab and alpha. अब ये बताओ, suppose you plan to prescribe infliximab to any patient, what important precaution you will take before you prescribe TNF alpha drug? क्या प्रिकॉशन लेंगे आप? चेस्ट एक्सरे कराएंगे या मॉन्टूस कराएंगे टू रूल आउट ट्यूबरक्लोसिस. इंटरल्यूकिन रिसेप्टर एनाकिंड्रा, ये रिटुक्सिमैब का मेन साइड इफेक्ट क्या है? दिस यू शुड नो. हेपेटोटॉक्सिसिटी, भयंकर हेपेटोटॉक्सिक है ये वाली. फ्यूजन प्रोटीन एबाटासेब, इंटरसिक एंटागोनिस्ट टोक्लिजुमैब, 1,3 टोफासिटिनिब, ये हम लोगों ने कोविड में बहुत यूज किया था. यूज किया या मिस यूज किया, आई डोंट नो, बट लोगों ने बहुत पैसे बनाए उसमें. बेरिसिटिनिब नहीं आई है. अल्नर डेविएशन ऑफ फिंगर द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग. ये स्वान नेक, ये बाकी डिफॉर्मिटीज हैं. ये कैरेक्टरिस्टिक पूछे तो अल्नर डेविएशन ऑफ फिंगर, दैट डिफॉर्मिटी. हाँ जी. During platelet aggregation, which substance bind platelet with capillary endothelium? Which substance bind to platelets? Raise the hand, raise the hand. Well, ये रहा platelet. ये रही injured endothelium. Is injured endothelium is knotted with platelet via von Willebrand factor. ये अटैच होता है GP1B9 receptor पे. Now two platelet, they are united to each other by fibrin and by GP2B3A receptors. Got it? तो ये प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होता है. तो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन की पहली रिक्वायरमेंट है इंजर्ड एंडोथीलियम. ये पहली रिक्वायरमेंट है. दैट्स व्हाई नॉर्मल सर्कुलेशन में कभी भी प्लग नहीं बनता है, बिकॉज एंडोथीलियम नॉर्मल होती है. प्लग, फिर उसके अलावा चलो इंजर्ड एंडोथीलियम प्लग बनने के क्या चाहिए? नंबर 1 प्लेटलेट. तभी कहा था थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा तो प्लग नहीं बनेगा, ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है. नंबर 2 होता है वॉन विलीब्रांड फैक्टर. वॉन विलीब्रांड फैक्टर क्लॉटिंग में भी काम आता है. तो वॉन विलीब्रांड डिजीज के अंदर इंक्रीज बीटी इंक्रीज सीटी दोनों होते हैं. GP1B/9 अगर ये रिसेप्टर डिफेक्टिव होगा, किस कंजेनिटल डिजीज में ये डिफेक्टिव होता है? बर्नार्ड, सोलियर्स. तो वहां पर भी सेम प्रॉब्लम होगी. फाइब्रिन नहीं होगा तो प्लग नहीं बनेगा, बट हैपन इन DIC. और GP2B3A रिसेप्टर किसमें होता है? ग्लैंड्स में, थ्रोम्बोसिनिया. प्लस वी हैव ड्रग्स का एफसिक्सिमैब, का एप्टाफिबाटाइड, टाइरोफिबैन, दे आर GP2B3A receptor blocking drugs. What is the triad of Pancoast syndrome? Severe pain in the shoulder region, atrophy of hand and arm muscle, and Horner syndrome. जब हॉर्नर सिंड्रोम आए तो दो चीजें याद रखना है, एक ये वाला और व्हाट इज मोर इन ब्रेन. कौन से वाले स्ट्रोक सिंड्रोम में हॉर्नर सिंड्रोम होता है? लेटरल मेडलरी सिंड्रोम, सो कॉल्ड वेलेनबर्ग सिंड्रोम, बिकॉज ऑफ पाइका. तो सीवियर पेन इन शोल्डर रीजन, atrophy of hand muscles,
including ये arm muscles. This is due to involvement of ulnar nerve. Horner syndrome due to involvement of cervical sympathetic ganglia. Horner syndrome. What's the mechanism of action of rivaroxaban and apixaban? Good, very good. Is it 10A inhibitor? और कौन सी ड्रग हैं which are 10A inhibitors? Idraperinax and fondaparinux. Which of the following is not a part of classical triad or diabetic syndrome? How many of you say answer A है? हाँ, सभी ने हाथ खड़े करने हैं. A, B, C, D. या हाथ तो खड़े करो. Come on, only resident. Everybody, be honest. Who says A? यही आंसर है. B, C, D. Well, the right answer is A. कितने लोगों ने सही किया है? A is the most common wrong answer. Answer D है polyphagia. Polyphagia? Sir, क्या पढ़ा रहे हो? I remember in my classes I was taught the classical triad is polyuria, polydipsia, polyphagia. Genong में भी ये लिखा है. रॉबिन्स में भी ये लिखा है. गलत लिखा है. सही कहाँ लिखा है बताओ, वरना आपको कमरे से बाहर जाने देंगे. Yes, we read Harrison. डायबिटीज का चैप्टर है, वहां लिखा है द क्लासिकल ट्रायड ऑफ डायबिटीज, ब्रैकेट में लिखा है पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया एंड वेट लॉस. ये ट्रायड है. पोलीफेजिया इज ए फीचर बट नॉट ए पार्ट ऑफ क्लासिकल ट्रायड ऑफ डायबिटिक सिम्टम. थक गए होगे आप, आपको फ्रेश कर दूं. आप सभी ने मूवी देखी होगी मुन्ना भाई एमबीबीएस. देखी थी? देखी थी ना. उसमें संजय दत्त को बिठाते हैं स्टेज पे, पूछते हैं मुन्ना भाई व्हाट इज डायबिटीज. मुन्ना भाई संजय दत्त अपने स्टाइल से, डायबिटीज इज अ स्टेट ऑफ क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया characterized by polyuria, polydipsia and unusual weight loss. मुन्ना भाई को भी पता है the classical triad is polyuria, polydipsia and unusual weight loss. Can't afford to lose such questions. समझाई? Got? Good question. हाँ जी. Which antimicrobial drug causes hypokalemia? Answer is amphotericin. देखिए हाइपोकैलेमिया का now what the cause of resistant hypokalemia? Hypomagnesemia is the cause of resistant. Now important cause of hypokalemia, आपको मैं यहाँ पे फूसामाइड, थायाजाइड इंक्लूड नहीं कर रहा, वो आपको आता है. बट जेटलमैन लिडल, RTA12, विटामिन B12, फॉलिक एसिड ट्रीटमेंट, जी मैं आपको बता चुका. डोंट फॉरगेट दिस. Alkaline pH hemoglobin electrophoresis is done in which condition? The answer is sickle cell anemia. The reason being सिकल सेल के अंदर अगर हम एसिडिक पीएच यूज करेंगे तो एसिडिक पीएच से अपने आप ही सिकलिंग हो जाएगी. So we never do. So we use alkaline pH hemoglobin electrophoresis. heterozygous सिकल सेल जीन्स होती है, ट्रेट के बारे में बात कर रहा हूं. इसमें एनीमिया कोई मैनिफेस्टेशन नहीं होता है. The only thing that we see is isocynuria and hematuria, impaired ability of tubule to do concentration, or hematuria may be there. बाकी कुछ नहीं होता है. And they are also spared from plasmodium infection. Howell Jolly body, they are the nuclear remnant in the peripheral gira, and that we see wherever spleen is not there. Now come rank one question. Tell me any GIT condition where we have hyposplenism.
celiac disease. In celiac disease, hyposplenism occurs. Avascular necrosis may occur in sickle cell anemia. Mesenteric infarct can occur in sickle cell anemia, not in trait. This is hair on end in X-ray. ये थैलेसीमिया में भी मिलता है. और fish mouth vertebra that we see get in advanced stage of sickle cell. In gout, in synovial fluid, you get like needle-shaped crystal. Everybody knows. We see under polarizing microscope, we negative birefringent कहते हैं. What do you mean by negative birefringent? क्या मतलब है इसका? यूजुअल क्वेश्चन होता है कि नीडल शेप क्रिस्टल कहाँ पे होते हैं. आपके लिए नेगेटिव का मतलब क्या है? The answer is, if you look into this, ये जो ऐसे जो वर्टिकल है वो नए हैं और ब्लू है, और ये वाले कैसे हैं, येलो और रेड है. तो जिस एंगल से हम देख रहे हैं, तो एट टू डिफरेंट जो प्लेस हैं, नीले और अलग, दे आर नोन एज नेगेटिव बायरेफ्रिंजेंट. वर्टिकल वाले ब्लू हैं और हॉरिजॉन्टल वाले पीले और लाल हैं. दिस द मीनिंग ऑफ नेगेटिव बायरेफ्रिंजेंट. Okay, now the best way to diagnose gout is synovial fluid analysis. Needle check crystal by polarizing light microscope, negative birefringent. This means that when the crystals are aligned parallel, they appear yellow. When they are aligned perpendicular, they appear blue. Now, which type of alcohol is most important in precipitating gout? Yes. कोई जल्दी नहीं. हाँ जी, चलिए, कर लिया. Who says whiskey, vodka, rum, red wine, white wine, beer? चलिए, before I give the answer, अब शराब की बात हो और कोई शेरो शायरी ना हो, ये तो शराब की तौहीन है. इस बात पे एक शेर अर्ज है. इरशाद इरशाद इरशाद. आओ तुम्हें बताएं शराब कैसे पिलाई जाती है. आओ तुम्हें बताएं शराब कैसे पिलाई जाती है. खोलने से पहले बोतल हिलाई जाती है. हिलाई जाती है. फिर आवाज लगाई जाती है. फिर आवाज लगाई जाती है. आ जाओ ए टूटे दिल वालों. आ जाओ ए टूटे दिल वालों. यहाँ दर्द दिल की दवा पिलाई जाती है. वाह वाह वाह. लड़के लोगों ने ज्यादा वाह वाह की है. सर जी, सर जी दुखती रख में हाथ दिया. दोस्तों, study should be a fun. Well, the right answer is beer is the most important precipitating gout. Which initial treatment is contraindicated in patients with heparin-induced thrombocytopenia? तुम्हें पता है क्लॉट बनता है. Which drug you will not like to use in this country? It's a beautiful question. Well, right answer is, as Sir said rightly, warfarin. Give a big hand to him. Give a big hand. Well, factor 2, 7, 9, 10. Factor C and S. They are all naturally occurring anticoagulants. Okay, naturally. Initial treatment of warfarin is contraindicated in patients with HIT, as it typically lowers the protein C level, which may strongly increase the risk of thrombus formation. Period. Which diuretic at site number 2? कौन से वाला डायरेटिक at site number 2? DCT, descending loop, ascending loop, this proximal part of DCT, the distal part of DCT, वो याद नहीं आया है. क्या नाम है? Who? Loop diuretic. ठीक है, पक्का है? कितने लोग लूप डायरेटिक वाले हैं?
और कितने लोग मैनिटॉल वाले हैं, कितने लोग एसिटाजोलामाइड वाले हैं, थायजाइड वाले, ब्यूमेटानाइड वाले, सारे ऑल डन। हाँ जी, चलिए बिफोर आई टॉक अबाउट दिस आंसर, व्हाट इज ए डायरेट? एनी ड्रग विच लीड टू इंक्रीज यूरिन फॉर्मेशन? यस और नो? हाँ तो करो यार। हाँ, इज द मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर। अब किसी बंदे को बियर पिला दो आप, बियर पिएगा तो खूब यूरिन पास करेगा, करेगा। किसी भी पब में चले आओ दिल्ली में, हर एक पब के साथ टॉयलेट अटैच जरूर होता है, तो खूब यूरिन पास करेगा। तो यू मीन टू से बियर इज ए वेरी गुड डायरेटिक? अगर ऐसा होता तो मैं ये इंस्टीट्यूट नहीं खोलता। सुबह से 9 बजे पेशेंट आता, ओपीडी में बैठता पेशेंट आता, हाइपरटेंशन CHF, ट्रीटमेंट 1 बॉटल ऑफ किंग फिशर बियर इन द मॉर्निंग एट 9 o'clock। वो मरीज कहते डॉक्टर साहब एक बोतल से क्या होगा? नहीं नहीं सर, मैं हाथ पकड़ के बीडी TDS कर दो ना, कोई शाम का जुगाड़ भी बनाओ। तो सारे ठेके बंद हो जाते, सारे बियर बार खुल जाते। विजय मलाया भी खुश होकर मुझे कैलेंडर भेजता बढ़िया वाला, उसका जो खास VIP कैलेंडर है। दोस्तों, ये बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन ये नहीं आता है, दैट मीन आवर नॉलेज ऑफ नेफ्रोलॉजी इज इनकम। वेल, इसके लिए लेट्स लर्न द बेसिक फिजियोलॉजी फर्स्ट। यहाँ पर PCT में सोडियम और वाटर एब्जॉर्ब होता बहुत है, बट आई एम जस्ट टॉकिंग टू सोडियम वाटर। यहाँ पर खाली वाटर एब्जॉर्ब होता है, यहाँ पर ओनली सोडियम नो वाटर, यहाँ पर भी ओनली सोडियम नो वाटर, और आगे जाके सोडियम वाटर एल्डोस्टेरोन दैट एवरीबॉडी नोस। यहाँ पर खाली वाटर एब्जॉर्ब होता है। ए डायरेटिक इज अ ड्रग व्हिच इनहिबिट्स सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एट एनी पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। सोडियम अब्जॉर्ब होगा तो वाटर अब्जॉर्ब नहीं होगा, तो वाटर विल गो आउट, दैट इज टू इंक्रीज यूरिन फॉर्मेशन। तो दोस्तों, डायरेटिक इज natriuresis, इंक्रीज वॉल्यूम अकर सेकेंडरली, क्योंकि यहाँ पर कोई, यहाँ पे सोडियम अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे नन ऑफ द डायरेटिक विल बी एक्टिव। तो याद रहे, डायरेसिस इज natriuresis. Which antibody are seen in primary membranous glomerulonephritis? Which type of glomerulonephritis can occur in Hodgkin lymphoma? Well, GBM ऑटो एंटीबॉडी होती है M टाइप PLA2R। ये खाली प्राइमरी में होती है, सेकेंडरी में नहीं होती है। मेम्ब्रेनस जो सेकेंडरी वाला कैन अकर इन SLE, कैन CO कोलोन और हेपेटाइटिस B C। एंड क्लासिकल पेशेंट हॉटकिन लिम्फोमा के अंदर मिनिमल चेंज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकती है। मिनिमल चेंज नॉर्मली इडियोपैथिक होती है, but it can occur in Hodgkin, it can occur in HIV, rifampicin, NSAID, they can all lead to minimal change. एक और क्लासिकल क्वेश्चन, मिनिमल चेंज की पैथोलॉजी में लॉस ऑफ फूड प्रोसेस, जिसे फ्यूजन ऑफ फूड प्रोसेस भी कहते हैं। सेम थिंग हैपन इन FSGS ऑल्सो। अगर आप गोल्डान की बुक पढ़ेंगे, पैथो की, उसमें एक लाइन लिखी है कि मैनी अथॉरिटीज थिंक that FSGS is a continuation of minimal change, ये उसी एक ही प्रोसेस के पार्ट है। तो लॉस ऑफ फूड प्रोसेस दोनों में होता है, लेकिन जो FSGS के क्लासिकल, इट इज अकर इन HIV एंड वेजाइकोयूरेटिक रिफ्लक्स, ये दो चीजें नहीं बोलनी है, वेयर वी गेट FSGS। तो मिनिमल चेंज पैथोलॉजी के बारे में, लॉस ऑफ फूड प्रोसेस अकर इन मिनिमल चेंज, मेम्ब्रेन में सब एपिथेलियल डिपॉजिशन ऑफ एंटीबॉडी, सो कॉल्ड स्पाइक एंड डोम पैटर्न। FSGS में भी ये होता है, लॉस ऑफ प्रोपोजिशन इसमें भी होता है, और एंटीजन एंटीबॉडी डिपोजिशन करते मेसेंजर मैट्रिक्स, जबकि यहाँ पे कोई एंटीजन एंटीबॉडी नहीं होती। मेम्ब्रेनोप्रोलिफेरेटिव में ट्राम ट्रैक अपीयरेंस बिकॉज ऑफ मेसेंजर सेल प्रोलिफरेशन, इट एंटर द बेसल मेम्ब्रेन, इट गिव राइज टू ट्राम ट्रैक अपीयरेंस। In which vasculitis involve vessel of all sizes, both artery and vein? We all know large vessel, medium vessel, small vessel. ये ऐसी कौन सी है which absorb everywhere? आंसर है B. Shet.
इसमें मोर कम्युनिकेशन और टर्किश, ये टर्की आ जाए तो बीच है, मैक्सिमम वही मिलते हैं। मिडिल ईस्ट एशियन, HLA-B5, B51, autoantibodies against analogous of endothelial cell and ASCT, एंटी-सेटोमाइसिस एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी और कहाँ मिलती है? Crohn disease, more in Crohn, less in alcohol. The classical type oral ulcer is a major criteria. ये दोनों minor है, genital and uveitis they are minor criteria. ये रहा mouth ulcer, ये रहा genital ulcer, uveitis. Uveitis is the main criteria, and remember in ankylosing spondylitis 30% केस में uveitis मिलता है। एल्मा नोडो मिलता है इसके। Now again rank one question. Tell me any blood malignancy where we get एल्मा नोडो, any hematological malignancy. आंसर है हेरी स्टैंडी, उसमें भी मिलता है एल्मा नोडो। Pathology test, a non-specific stimulus can lead to intense inflammation. Pathology test, ये क्या फाइंडिंग है? विच कर दी, क्या है ये? Yes, they are niche nodules and they are singing NF1. NF1 के अंदर कैप्सुलेट स्पॉट, सबक्यूटेनियस नोड्यूल, निच नोड्यूल आइरिस के अंदर, एक्सुबेंस फ्रैक्चरिंग, सुपरक्लोसाइन, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस. What is the pathophysiology of a dipsic hypermetropenia? Well, we all know very well, serum sodium is 135 to 145 millicoulombs per liter, or when more than 145 is hypernatremia. Normally hypernatremia is not a big problem. जब भी प्यास लगेगी हम पानी पी लेते हैं, लेकिन जब थर्स्ट मैकेनिज्म खत्म हो जाएगा, a defect in thirst mechanism results in adiabatic hypernatremia, a syndrome characterized by chronic or recurrent hypertonic dehydration. We are getting a solitary large ulcer in lower esophagus. क्या है ये पहले आ चुका है, रिपीट क्वेश्चन है। आंसर है CMD, esophagitis large ulcer, और इसके अंदर क्लासिकली रेटिना में व्हाट वी गेट कॉटेज चीज एंड सॉसेज अपीयरेंस, पेरिवेस्कुलर हेमरेज एंड एक्यूडेट. Commonest cause of metabolic acidosis with hypokalaemia. ये भी आ चुका है, जान के डरा गया है। देखो हाउ अटेंटिव यू आर, जान के हाउ अटेंटिव यू आर. डायरिया RT1 and 2. In which condition shrinking lung syndrome occurs? किसमें होता है shrinking lung syndrome? किसमें होता है? आंसर है SLE. SLE के SLE typical rash, mouth ulcer, lupus nephritis, wire loop appearance. This is the most important question. Shrinking lung syndrome, elevated hemidiaphragm, an area of atelectasis, Liebman Shet endocarditis. अब एक सवाल और. Tell me any condition where the patient can have at the same time metabolic acidosis and metabolic alcohol एक ही बार, और उसकी क्या फाइंडिंग मिलेगी? पीएच के अंदर बाइकार क्या मिलेगा? CO2 क्या मिलेगा?
patient having metabolic acidosis and metabolic alkalosis together at the same time. Answer है chronic renal failure with vomiting, severe diarrhea and with vomiting. CRF and diarrhea will lead to metabolic acidosis. Vomiting will lead to metabolic alkalosis. इसमें pH नॉर्मल होगा, Y कार्ब नॉर्मल होगा, CO2 नॉर्मल होगा, सब कुछ नॉर्मल, सिर्फ एनाइन गैप ज्यादा होगा. All report normal anion gap increases metabolic acidosis and metabolic alkalosis. हाँ, क्या आंसर है इसका? क्या आंसर है इसका? एपिडेमिक. जब एपिडेमिक की बात होती है तो वी थिंक अबाउट मीजल्स, मम, रूबेला वगैरह. आंसर है रीटस. इसका सिगेला से हो सकता है, डायरिया वाला, और क्लेमाइडिया ट्रिकोमोनासिस द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूरिथ्राइटिस. Shigella is the one problem which can occur in epidemic. So Ritter disease, the one rheumatological condition which can occur in epidemic form of host. Okay, it is one disease. Otherwise, sexual रूप से होता है ये वाला. Classically in males, जब भी सवाल आए कि young boy went for a leisure trip की बात करें तो वो Ritter disease. Classically dactylitis, finger ऐसे होती है. Faucet digit, माउथ अल्सर, ये ग्लांस के अंदर सिस्टमेट बेलेनाइटिस, ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ ब्रह्मा बनियोज का ये ट्रीटमेंट की बात की पिक्चर है. जस्ट सी टिपिकल रैश आती है सोरियासिस वाली टाइप की. अबाउट फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, हाउ अल्कोहल कॉजेज इट, हाउ पैंटोइन कॉजेज इट. Well, let's learn the basic physiology first. Folic acid metabolism, जो डाइट में polyglutaminate होता है, green vegetable. This is converted into monoglutamate by the intestinal conjugase in the gentle. Intestinal conjugase is inhibited by phenytoin. Phenytoin poly को मोनो में बदलने ही नहीं देता. चलो बन गया है. Now mono is absorbed in jejunum. Absorption of monoglutamate is blocked by alcohol and oral contact. तो इसका जो एक्शन होता है at the level of absorption, जबकि phenytoin ने क्या किया था, it did not let poly get converted into mono. Binding of B12 to intrinsic factor occur in which part of the terminal ileum? Well, the answer is basic physiology. जब विटामिन B12 खाते हैं तो सलाइवा में होता है R factor. तो विटामिन B12 get bound to R factor in the mouth और ये आएगा पेट में. R factor का काम है B12 को बचाना एसिडिक पीएच. उसके बाद इंटेंसिव फैक्टर आएगा, स्टमक से निकलता है. Now this B12 will bound to intensive factor in the duodenum. वहाँ पे R factor हट जाएगा. Now this intensive factor will carry B12 up to the terminal ileum. वहाँ पर रिसेप्टर होता है क्यूबैम. ये क्यूबैम से अटैच होगा और वहाँ पे इंटेंसिव फैक्टर रह जाएगा. Now B12 deficiency is uncommon in pediatric age group. क्या रीजन है? Why B12 deficiency is uncommon in pediatrics? The reason being, दुनिया भर में हमारी डाइटरी हैबिट अलग होती है, पर वन हैबिट कॉमन टू होल वर्ल्ड इज मिल्क. क्योंकि 6 महीने बच्चा दूध पीता है. Milk is a good source of B12 and B12 is stored in the liver for 3 to 4 years. That's why B12 deficiency is uncommon in pediatric age group. अगर कोई बच्चा B12 deficiency लेके आ रहा है तो उसको रिसेप्टर की प्रॉब्लम है. It's very common in Western countries. They have a problem with the receptor, and that's why B12 is not strong. So इन बच्चों को they should be given injection. अब इंजेक्शन में क्या रूट है हमारे पास? ओरल तो काम करेगी नहीं. We can give subcute, we can give intradermal, we can give IM, IV.
तो कौन सा रूट आप नहीं देंगे? You will not give me IV. IV वाला will not get absorbed if you go out of the kidney as it is. Commonest cause of acid base, the last question है. Commonest cause of acid base disturbance in the European country is European country, London, Paris, Rome वगैरह. सवाल मुश्किल तो नहीं है. Commonest cause of acid base disturbance in the European country. I don't know. Really don't know. हाँ जी. European countries. I'm not talking about India or Bangladesh. कितने लोग A वाले हैं, B वाले, C वाले, D वाले. यार हाथ सबने खड़े कर. घर की बात है. कोई फाइन नहीं, कोई GST नहीं, कोई कुछ नहीं है. तो हाथ तो सभी everybody has to do that. Who says A? अब बढ़ गया. B, C, D. I just discussed in 1 minute. Well, ये किताब मिनी हैरिसन है. अल्टीमेट बुक है. ये आ रही है मिनी हैरिसन. इतना आता है तो यू आर द टॉपर ऑफ MD. इससे आगे पूछेगा. ये थोड़ी मोटी लग रही है. ये डिजिटल कॉपी है. थोड़ी मोटे कागज में छपी हुई है. लेकिन जो अच्छी किताब आएगी सब कंटेंट वही रहेगा. कागज का साइज पतला होगा, साइज पतला होगा, लेकिन कंटेंट रिमेन द सेम. अमेज़न पे आ जाएगी. अल्टीमेट बुक है वाली मिनी हैरिसन. Good enough to pass your NEET exam also. I think कृष्णा will tell you. इसका मैसेज आया था कि ये किताब पढ़ के मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पास की. MRCP is a good option for all of you. आपका all of you are in the reason right now before you clear your MD आपका MRCP हो जाएगा घर बैठे बैठे. MRCP is a world recognized degree. You can practice anywhere in the world. MD recognized नहीं. You go to Gulf country with MD, आपकी सैलरी होगी 100 रुपए. With MRCP is 200. So should do MRCP कर लो. और you go to UK, your salary will be in the range of 1 करोड़ तक कमा लोगे पर एनम के अंदर. उसकी जिंदगी बन जाती है. वहाँ पर सुपर स्पेशलिटी हो सकती है बिना किसी कस्टम कुछ. ओके. So it is a you can do. जहाँ भी है उसी में हो जाएगा. We do online courses है मेरे पास. Regional international degree for you. For you people, it is extremely easy to pass any post center. Only requirement is internship. तो आपके लिए तो बहुत ही आसान है. It is a walk through you have for you people. We have online courses. Well, smart बच्चों के मेरे recorded lectures भी हैं. उतना आता है तो you are the topper of your MD exam. कैसा रहा सही? मजा आया? I give you 2 minutes. Just send a testimonial इस नंबर पे and मैं आपका testimonial सेव करूंगा. And I'll be sending you lot of आपके नंबर आ जाएंगे तो I'll be sending you lot of free videos also. So I give you 2 minutes. अब करेंगे. उसके बाद I'll discuss दो तीन चीजें और हम बताता हूँ आपको. I give you 5 minutes. Take your time. I'm just coming into. आप भेज दें मैसेज. मेरा मोबाइल अभी ऑफ है. नहीं, मेरा मोबाइल अभी ऑफ है. ड्यूरिंग लेक्चर आई की आप भेजेंगे लेकिन मेरा अब आ जाएगा मैसेज आ जाएगा. चिंता नहीं करो. ओके. आई जस्ट स्विच इट ऑन. तो आप मैसेज भेज दें.
प्लीज राइट योर नेम, कॉलेज किस सिटी में है, और क्लिनिकल मेडिसिन अपडेट अहमदाबाद, ये जरूर लिखना ताकि आई शुड नो कहाँ से मैसेज आया। I'll be sending you lot of good videos. अभी को मजा आ गया यार। चलिए लास्ट 1 मिनट, हेलो हेलो, ओनली 1 मिनट, जस्ट ओनली 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। आंसर तो सुन लो जिस क्वेश्चन का इसके लिए आए हो। हाँ जी भेज दिया, डन। वेल अगेन अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू, API is starting test and discussion और पोस्ट ग्रेजुएट 21 अप्रैल से शुरू करेंगे, संडे मॉर्निंग रखेंगे। इट विल बी हाइब्रिड मोड पे, दिल्ली में फेस टू फेस होगा पर लेकिन इसको पूरे कंट्री में रिले करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, टेस्ट एंड डिस्कशन इसी फॉर्मेट में जैसे मैंने किया है। ओके, कवरिंग ऑल द ग्रे एरियाज जो आपके हैं। तो सून आई इन्फॉर्म यू की डिटेल्स क्या है। दिस विल टेल टू योर पीपल आल्सो। हाँ जी, तो लास्ट क्वेश्चन था कॉमनेस कॉलर एसिड बेस कंट्री, आंसर है अल्कोहल। कितने लोगों ने सही किया, हाथ खड़े करेंगे, हाथ खड़े करेंगे। अल्कोहल द मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर, आंसर डायरिया है। डायरिया, यस। क्या गलती करते हैं, द मोमेंट यू गेट यूरोपियन कंट्री तो आपके माइंड में कोई फरंगी आदमी आते हैं, गोरा आदमी, दारू तो पीता ही होगा, जैसे हम लोग चाय कॉफी पीते हैं वो दारू पीते हैं, तो हमारे माइंड में अल्कोहल आता है। But we forgot it's not the ethanol which is to acid base, the methanol। तो कच्ची शराब तो होती है ना, तो हमारे आते हैं रिपोर्ट आती है जी इतने लोग बिहार में मारे गए, ताड़ी बोलते हैं, am I right? अब मान लो आपका कोई दोस्त है, आप फ्रांस गए, आईफिल टावर के टॉप पे एक रेस्टोरेंट है, वो वहां पे कच्ची शराब खर्राब पी रहा है, खर्राब बोलते हैं दिल्ली, ताड़ी पीते हैं, तो आप क्या बोलोगे, अबे दादा तू फ्रांस में आके भी खर्रा पी रहा है, तो ठर्रा ही पीना है तो यहाँ फ्रांस में आए कोई शैंपेन चुम्पेन वाइन शैन पियो। अगर तुम्हें फ्रांस में आके भी तुम्हें ठर्रा ही पीना है तो हिंदुस्तान में ठीक है, यहाँ क्या करने आया है। चलिए अब डायरिया के अंदर मैंने कहा था लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट देन लीड टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब डायरिया उन फरंगियों को भी होता है, उनके नीचे कोई नट बोल्ट तो लगे नहीं हुए, इधर डायरिया नहीं होगा। तो दोस्तों कॉमनेस कॉज ऑफ एसिड डिस्टर्बेंस इन द होल वर्ल्ड इज अल्कोहल। ठीक है, सो डायरिया, डायरिया का आंसर, डायरिया का आंसर पक्का है। तो फाइनली let me introduce to the boss of my institute, owner of my institute. Ganpati is the, please all of you stand up. Please give a warm welcome to my boss. And I pray to my boss that he should shower blessing to all my young friends so that they get success, happiness throughout life. I hope you all enjoy it. Thank you very much. Thank you very much. So nice of you. God bless all of you. Thank you very much.